A warm welcome to all for the national webinar on personality traits for a successful dairy entrepreneur, which is conducted by the Department of Dairy Chemistry under the IDP cell, which is operational in the Gadwasu. It gives me immense pleasure to welcome and introduce our today's speaker, Dr. Pragya Badauria. She is working as a scientist in livestock production management at ICR Atari, Ludhiana. She did her BVSc and Animal Husbandry from JNKVB and MVSc in LPM from IVRI Bareilly and PhD in LPM from NDRI Karnal. As a scientist, she has a diverse work experience of 8 years in the field of animal husbandry, and her professional roles and responsibilities include planning, implementation, and monitoring of KVK activities, which include on-farm testing, frontline demonstrations, training, and other extension activities. She also helps the entrepreneurs and animal husbandry farmers with the skill development and technical consultancy. So with this brief introduction, I request Dr. Pragya to deliver her lecture on personality traits for a successful dairy entrepreneur. So before starting the webinar, I request all the participants to register the form, the Google form, which will be available on the chat box. Okay, that has to be filled by all the participants in order to avail the e-certificate, which will be sent through your email. And if you have any queries regarding the webinar, you have to again write it on the chat box. After the session, we will discuss the same in the question answer section. So with this, I again request Dr. Pragya to deliver a lecture on personality traits for the successful dairy entrepreneur. Please, Pragya. Thank you, ma'am. So first of all, I would like to thank Dr. Veena and Dr. Anuradha for giving me such a nice pleasure to interact with large number of smart entrepreneur. I can say the BTech students, which seems to be quite nearby, about 70 numbers. So very good afternoon to all of you. So I just want to share my presentation and just want to tell you that if you are spending your 1 hour or 1.5 hours, so be attentive, because this session or lecture quite seems to be a milestone in your life in the coming years. If you really want to do a successful business or successful profession in your coming years, so that's why I just request you to not take as an academic lecture rather than a self development session for you all. So may I request all to please mute your mics and just pay attention for a while. Don't put your mobiles aside and doing other work. So just I need full concentration, because at last randomly I may ask some question from you, the participants. So be ready for that. So here I'm sharing my presentation. So I think it is visible to all of you. Just say, Yes. ma'am, it is visible. Okay. Yes, yes. Okay. Yes, Uh, ma'am. make it okay. Slideshow. Slideshow. It Yes. is okay now. Now it is So okay. just ma'am already given my introduction that I'm a veterinary or animal scientist, admitted through agriculture research services in ICR. Simultaneously with my passion, I'm also doing the work of a mentor of change for motivational lectures, skill development, as well as the self development of a personality in Atal Innovation Mission, a national program of Niti Aayog, Government of India. So, students, first of all, I would like to tell that the stage where you are doing your graduation,
And after finishing your graduation, it is the milestone time. It is the crucial period of your life, the first crucial period that you have already cleared in your 10th 12th class, where you have moved to the college life. Now, after finishing your graduation, you are going to move in the real life situation, where no more experimentation, where no more theoretical learning is there. It is just all about the practical skill that you have learned. So some of yours are interested in post graduation studies, some will go to some jobs of private and government services, and some will opt for the businesses as an entrepreneur. But let me tell you, this is the crucial time when you have to spend your time in technical skill, what you are learning from your subject of dairy, whatever the day, a different type of technical skill you are learning. You are preparing for your future profession. Similarly, it's not all about the technical skill. When you go into a profession as an entrepreneur, as an academician, as a teacher, or as a researcher, then many apart from this technical skill, you have to develop our core competency in life skills. If you are failure in your life skill, you will means आप कुछ भी हो जाए, मतलब आप टॉपर हो, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बट यू डिडंट नो द बेसिक्स ऑफ life skill, then you will not be whole soul successful. फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि इन लास्ट लॉकडाउन you have the base means big example of Sushant Singh Rajput. He has everything, every personality, every successful career, but if he is not able to uh, take the stress, mental stress, and other people who are not able to take their life in a positive manner, they become failure. नो डाउट कि कितना भी उनको कितनी भी बड़ी जॉब हो, जॉब प्रोफाइल हो, पैसा हो, बट वी डोंट हैव लाइफ स्किल हाउ टू do tackle in the life real life situation, then it will be a big failure for us. So this is the crucial time for you, because after graduation you directly enter the professional life, where no one give you the chance to develop your personality, to develop your actual skill. So when I say personality, this is the time when you have to inculcate some traits in your personality. You have to change your personality. You have to prepare your personality for the coming life, for the coming life lessons, for the exams. Means technical exam होंगे तो आप क्या करेंगे? आपने बीटेक की स्टडीज करी, आपके पास जैसा भी एग्जाम आएगा, you will appear for that. Similarly, life give you a different kind of exams in the form of tough exams, in the form of tough bosses, in the form of tough peers, your family problems. Then if you don't have a good personality, overall personality, then it's very difficult to be stable in that situation. So when I say personality, so what comes to your minds first? You see, is it the famous personalities? It's come to your minds. Do you mean that the famous person has the greatest personality? No, it's not like that. It's the thing, the internal character, the extraordinary personality makes the people a great personality. If you inculcate those traits, as well as you also become famous and successful. So if we see the what is personality, it is a Latin word derived from persona, which means mask. Actually, we all have a certain kind of mask on ourselves. Like if I'm talking to you, I'm talking to professional gathering, then I have different mask. When I am in a family, I have a different mask. When I with my friends, I have a different mask. So we have a cumulative different kinds of personality according to the situation and the person. So similarly, it's a brand image of individual which created by their character, behaviors and attitude, and it is just reflected in our day to day
थिंग्स कि हम किसी से कैसे बात कर रहे हैं, हम किसी से कैसे सिंपली परस्यू कर रहे हैं थिंग्स को, या लाइफ की सिचुएशंस को कैसे देख रहे हैं, इट ऑल डिपेक्ट्स आवर ओवरऑल पर्सनालिटी. सो द मेजर थिंग इज दैट नो two individual have similar personality. For example, if you have heard about Gautam Buddha, there is no true Gautam Buddha. If you heard about Gandhi ji, there is no true Gandhi ji. मतलब एक इंसान जो एक बार हो चुका है वो रिपीट नहीं होगा. सिमिलर लाइक थंब इम्प्रेशंस. हमारे थंब इम्प्रेशन क्यों, जो हमारा आधार का आइडेंटिफिकेशन नंबर्स बनाए हैं, बिकॉज ये जेनेटिक्स में, ये साइंस में प्रूवन है कि किसी भी दो इंडिविजुअल से नहीं हो सकते. सिमिलरली किसी भी दो इंसान की पर्सनालिटी सिमिलर नहीं हो सकती. एंड वी थिंक वाइल डीलिंग विद द पीपल, वाइल डीलिंग विद आवर रिलेटिव्स एंड फैमिली, कि ये लोग ऐसे कैसे, भाई वो लोग वैसे ही होंगे, बिकॉज इट इज द साइंटिफिक फैक्ट कि द डीएनए, the whole sequencing is not similar. It is different for every personality. Okay, so why it is so, personality is why they are different. If we see the basic determinants of a particular personality or a particular individual, then it is mostly depend on these major factors. The major factor is the heredity, or we can say the genetics. For example, if you are a taller person, or if you are a fatty or shorter person, it's not your fault, it's the heredity, because it's from your parents, from your forefathers, it came to you. So you can't do nothing for this. Means your skin color, this is nothing, means because it is heredity, you have got from your family. Then the second one is environment. For example, if a child got a good environment from the beginning of their childhood, they get encouraged, the person get encouraged and a happy peaceful environment, a homely environment, then it get a positive attitude and positive personality. On the other side, there will be a recessive personality if there is some parental dispute, family dispute, some मीन्स प्रॉब्लम्स हैं अगर उसके घर में, कल वो है, तो जो एक पर्सनालिटी निकल के आएगी वो एक डिप्रेसिव होगी, एक रिसेसिव होगी, एक इंट्रोवर्ट टाइप की होगी. Similarly, अगर situations हैं कि somebody is suffering something deadly disease or something any cruel disease in their childhood, so they have some scar, mental scar in there. तो वो situations से, painful situations से, they have come out of that, but still the scar is there in their psychology. So this is all about the psychology of the personality, why the personality differ. Similarly, cultural background, ki where you are a Punjabi, you are a South Indian, you are a Gujarati. So cultural differences are there. So personality also varies from that also. And similarly, family and social status. Likewise, if a serviceman class, they will give more focus to the studies. Rather on the other side, if a businessman or entrepreneurs class, they will give they were not so much of serious about the studies. So what's the difference? हम क्यों बोलेंगे कि नहीं यार ये अजीब है, इसको तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता. No, the family background is like that. So उससे कोई इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं. But service class doesn't have independent identity. तो उन्हें अपनी identity बनाने के लिए they have to study, work hard. So we can't compare कि वो पढ़ नहीं रहा तो हमें नहीं पढ़ना है, या वो ऐसे कर रहा है तो हमें ऐसे कर रहा है, because you all are coming from different social societies, families and culture as well as situations. So one and all, we can say the personality is somewhat abhi mein lecture. Personality is somewhat is a we can say it's a quite stable. It is very difficult to change the personality, but with the time, of course, we can say कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. हमें लास्ट तक, बचपन से लेके जब तक हम ओल्ड एज में जाते हैं, वी आर लर्निंग ऑन द अदर हैंड.
and we are inculcating the good traits or even the bad traits as well. तो हमें हमारी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होता रहता है. अब वो पॉजिटिव साइड में हो रहा है या नेगेटिव साइड में हो रहा है, दैट वी हैव टू रियलाइज. और हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्चुअली ग्रोथ में लिया जाता है, पॉजिटिव साइड में लिया जाता है. तो सो we have to be in mindset that we have to change our personality, we have to do our personality development in a positive manner, in a growth wise manner, so that our weakness got transform into our strength. So it is a development process. So it is difficult because difficult, why I can say, because the personality is made out of your habits. क्योंकि आपके जो बिहेवियर्स हैं, जो ट्रेड्स हैं, जो बिलीफ सिस्टम है, वो आपकी हैबिट्स बन गई होती है. फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता है तो वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, नाउ इट बिकम हिज हैबिट. तो उसको ये पता ही नहीं है कि ये मेरी हैबिट है. या कोई स्ट्रेस लेता है, छोटी छोटी सी बातों का स्ट्रेस ले लेगा. मतलब ये लेट हो गया, ट्रेन लेट हो गई, बस लेट हो गई, रेनी सीजन है, बारिश है, ऐसा कुछ 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 छोटी. तो ही डजंट अवेयर अबाउट हिज पर्सनैलिटी कि उसको स्मॉल स्मॉल थिंग्स का स्ट्रेस लेने की आदत है. तो इट सीम्स टू बी अ पर्सनैलिटी ट्रेट. सो वी हैव टू वेरी कॉन्शियस अबाउट आवर डे टू डे बिहेवियर, our communication skills, our gestures and postures, which I later will discuss in detail. So why one can say ki why we have to go for personality development. See, most of the people have a belief, I can say a blind belief, that we have got a PhD degree, or we have got the postdoc degree, or we have got the highest degree, so what's the need, we know everything. The thing is that if you are living in a society, in a world, that degree is not enough. There is much more than the education. What I can say, a difference between a degree and education. Literate means illiterate, and educated person. Educated or education is different from these literacy. Okay, so education means you have to holistic knowledge of your relationship, of your behavior, of your how to live your life according to your wish. So that's why if you don't spend your time in personality development, you didn't get a holistic result of success. Okay, so there are different stages of personality development. For example, you have reached the third stage of the personality development, starting from your childhood. You have mentally developed, mentally become strong, become independent. You become emotionally stable, because आप लोग जब हॉस्टल्स में रहते हो, क्लासेस अटेंड करते हो, बाहर सोसाइटी में भी आप जा रहे हो, सोशल इंटरेक्शन कर रहे हो, देन यू हैव लर्न गुड एंड बैड लेसन्स. आपको लगता है कि अगर किसी ने मेरे साथ बिट्रेट किया, धोखा किया, तो मैं भी अब नेक्स्ट टाइम से किसी के साथ अच्छा नहीं करूंगा. तो इस टाइप से हम अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस करते रहेंगे. और बहुत मजे की बात ये होती है कि हर इंसान बहुत अच्छा होता है, बट क्या होता है कि सब एक दूसरे से जब हम मिलते हैं तो हम हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं होते. उस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे हम अपना माइंडसेट या माइंड मेकअप ऐसा करते हैं कि लोग तो खराब है, हम इतनी हेल्प करते हैं फिर भी लोग हमें धोखा देते हैं. इस टाइप का जनरल टेंडेंसी होता है. बट if somebody knows the psychology of the personality, then the people says कि people got changes because of the negative incidents in their lives. तो हमें क्या देखना है कि अगर हम एक इंसिडेंट से ओके हमारा पास्ट एक्सपीरियंस किसी के साथ अच्छा नहीं था, तो हम वहीं उसको फुल स्टॉप लगाते हैं और किसी दूसरे के साथ हम कुछ गलत कर देते हैं. ऐसे वो चेन कंटिन्यू चलती रहती है. तो हमारे जो रिलेशंस हैं, और हम एक स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी बन जाते हैं, मतलब हम एक किसी से बदला लेने का ज़्यादा हम लोगों में एटीट्यूड हो जाता है, और एक दूसरे से सब ऐसी साइकिल चली रहती है. तो ये हम अपनी पर्सनालिटी में पॉजिटिव की जगह क्या करते हैं, नेगेटिव चेंजेस करते हैं. ऑल्दो होना इसका उल्टा चाहिए, बट द पीपल डोंट हैव गुड अवेयरनेस ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ द पर्सनालिटी. दैट्स व्हाई दे डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स. Okay, so you are moving towards a financial personality, because
Now, after social acceptance, you have to start earning. You have to start earning for yourself. You have to become independent, financially independent. So you become a financial personality towards the financial personality. Spiritual personality, it is the last. Generally, people have a mindset that after retirement they develop the spiritual personality कि चलो अभी भगवान को याद करना है. But nowadays, if you look at the situations, look at the rat running everywhere, मतलब भीड़ के पीछे सब लोग भागे जा रहे हैं, तो उसमें जो अभी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है ये अभी ही निकल के आ रही है यंगर जनरेशन में खासकर, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, स्ट्रेस, जो कि लोग अपने मेंटल को मतलब संभाल नहीं पा रहे, मेंटल स्ट्रेस को संभाल नहीं पा रहे. तो now they have taken the spirit of spirituality, so they are entered in a spirituality personality now at an early age कि क्योंकि जो हमें इंटरनल जो शक्ति मिलती है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है, वो स्पिरिचुअल बीइंग्स होने से या भगवान से अटैच होने के बाद ही हमें मिलता है. तो सो इफ वी सी द होलिस्टिक सिनेरियो ऑफ द पर्सनैलिटी, हमें जनरल एक कंसेप्ट होता है कि हम कैसे बोलते हैं, हम कैसे दिखते हैं, ओवरऑल जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है हम उसको पर्सनैलिटी बोलते हैं. दिस इज द रॉन्ग मिथ. It is the cumulative effect of your emotional status, your social status, how's your relation with your peers, with your family, with your guides, with your teachers. Similarly, professionally, how you are behaving, how you have a goal setting, you are doing good, you are good in academics and other extracurricular activity, where you are spending your time. And lastly, the physical appearance, because physical is good but it is not whole soul. You are looking a very pleasant personality, you are groomed well and you are speaking very well, but your core values, inner value are not good, then you will not sustain for a long, because sustainability of a personality need all these four domains. Okay, so first of all, once you have to be very clear who I am, to know your own personality. Because when I say कि आप इसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानते हो, या अपने फ्रेंड के बारे में जानते हो, या अपने टीचर या गाइड के बारे में जानते हो, यू काउंट थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स फॉर दैम कि वो ऐसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, गुस्सा करते हैं, स्ट्रिक्ट हैं, सब कुछ बता दोगे, अपने रूममेट के बारे में बता दोगे. But the thing is that when it's come to you, you have done your SWOT analysis, you have analyzed your strength, opportunities, weakness, and threats. So do this homework, write your strength, opportunity, weakness, and threats in four corners, four sides, and whatever your strength, you just write down. Because we think कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, but हमारा क्लियर पिक्चर तब तक नहीं आता when we can't write down. जब हम एक बार राइट डाउन कर देते हैं तो हमारे को क्लियरिटी आ जाती है, ओके हम इम्पेशेंस है या हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है, हमारी स्ट्रेंथ ही है. तो यू राइट डाउन योर स्ट्रेंथ and you try to enhance and sharpen those strengths. Similarly, you be aware of the opportunity which will provide you better option कि आप ये चाहते थे. For example, if I am very passionate about these kind of lectures, so whenever I got offer to deliver a lecture, I just proactively grab that opportunity. So you have to be very sincere, aware about your opportunity कि अपने आस में बहुत सारी चीजें होती हैं बट हमारा माइंड फोकस नहीं होता, तो हमें वो अपॉर्चुनिटीज दिखती नहीं है. सिमिलरली, व्हाट अबाउट योर वीकनेसेस? वीकनेस ऐसा कोई भी बंदा नहीं होता, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होता जिसमें प्रॉब्लम्स ना हो. तो हमें चाहना क्या है कि दिस इज अ लाइफ प्रोसेस. वी हैव टू enhance our strength and decrease our weaknesses. तो हमारी जो भी weaknesses हैं कि हम ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ज़्यादा देर तक सोते हैं, तो जो भी आपको लगता है, because you know very well, जब आप लिख लोगे तो वो और अच्छे से आपकी सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगी. और उसके बाद उन वीकनेसेस को सी, द थिंग इज दैट ये न्यू ईयर है और न्यू ईयर में यू कैन मेक सम रिजोल्यूशंस टू रिमूव योर वीकनेसेस. सिमिलरली, थ्रेड्स कि कुछ आपकी वीकनेस है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती और फिर आपको थोड़ा सा उसमें डर होगा,
तो ऐसी चीज़ों से भी आपको थोड़ा डरना है। आपको ड्राइविंग नहीं आती तो यू शुड बी समवॉट अवेयर अबाउट योर वीक पॉइंट्स कि इससे मेरे को खतरा है तो ये चीज़ से मुझे दूर रहना है। सिमिलरली एक और अपनी सेल्फ असेसमेंट के लिए चीज़ जो टेक्निक होती है वो होती है जौहरी विंडो विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल्स। ये तो हमने अपने एक बुक में एक उसमें लिख कर हमने अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर दिया। एक होता है विद द हेल्प ऑफ अदर्स। कई बार क्या होता है इसमें 4 विंडोज होती हैं, जैसे कि फर्स्ट विंडो जो होती है वो ओपन होती है जो हम बोलते हैं पब्लिक विंडो। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इफ कोई इंडिविजुअल इज अ गुड सिंगर, तो वो फंक्शंस में गा रहा है, गैदरिंग्स में गा रहा है, तो एवरीबडी नोज, यू नो दैट यू आर अ गुड सिंगर and the public also knows that you are a good singer. Similarly, the blind window is that you know that you are aware of something. Means if you are a good poet and you write in your daily diary good number of poets, but the people didn't know, so the people are unaware of these qualities. Similarly, this is the hidden one, and the blind one is that uh, some people are egoistic but they didn't realize that they are egoistic. But people think that 90% of the people says that they are egoistic या they are quarrelsome, तो हम उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते। जब 90 पीपल लोगों ने आपको थोड़ा सा डिक्लेरेशन दे रखा है, इट मीन्स यू आर, तो उधर हमें थोड़ा सा फोकस करना है इफ यू वांट योर पर्सनालिटी टू बी इन पॉजिटिव डायरेक्शन। कि अगर सारे लोग कुछ चीज आप में कॉमन नेगेटिव बता रहे हैं या कॉमन पॉजिटिव बता रहे हैं, यू शुड गो टू दैट पॉइंट। तो वो जो अननोन थिंग होती है जो आपको नहीं पता होती है, वो पीपल और अपने हेल्प की मदद से आप निकालिए। मीन्स समटाइम पीपल आर वेरी गुड राइटर्स होते हैं बट दे डोंट नो। बट पीपल जब हम लिखना शुरू करते हैं, छोटे छोटे ब्लॉग्स लिखते हैं, then people will appreciate. Then you have to take the people advice कि whether I shall do continue this passion of mine। तो इस टाइप से क्या होता है कि हम अपनी पर्सनालिटी का एनालिसिस करते हैं, where we are strong and where we are less lacking. So generally if you do very number of online questionnaires or personality assessment tools are there, you go online and assess your personality. Do it in the night time कि which type of personality you have. There are majority 9 type of personality, so you everybody have to know कि तुम आखिर हो कैसे। और उसके बाद अगर इन 9 टाइप की पर्सनालिटीज में निकलते हो, जैसे पीस मेकर है जो कभी चुपचाप लड़ते नहीं है, करते, कुछ लोग हेल्प करते रहते हैं, कुछ लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, वो पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स में भी अच्छे होते हैं, कुछ एडवेंचरस होते हैं। तो विच एवर टाइप ऑफ योर पर्सनैलिटी इज, the very rule of the thumb is that you have to love yourself। आप जो भी हैं आप उसको सहृदय स्वीकार करें कि नहीं, मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ। जरूरी नहीं है कि हम पर्सनालिटी या को एक पॉजिटिव सेंस में करें, हो सकता है हम नेगेटिव पर्सनालिटी में भी हैं, बट ठीक है, हम जो हैं हमने हमारा करेक्ट असेसमेंट किया है, द वेरी थिंग इज दैट। तो इसको हम कहते हैं एटीट्यूड। मीन्स आप जो भी हैं, आप बिल्ली हैं, आप छोटे से, आप नेगेटिव हो, आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो, आप दौड़ने में अच्छे नहीं हो, कोई बात नहीं। दिस इज द सोशल जजमेंट। सोशल जजमेंट की यू शुड बी टॉप इन एवरीथिंग, इट डज नॉट इफेक्ट योर मेंटल एटीट्यूड। योर एटीट्यूड शुड बी कि मैं जो भी हूँ, हम यहाँ लाइफ जीने आए हैं, हम यहाँ किसी को दिखाने नहीं आए हैं कि हम क्या हैं। द वेरी रॉन्ग मिसकंसेप्शन ऑफ टूडेज वर्ल्ड इज कि हम लाइफ जीते नहीं, दिखाते हैं। द थिंग इज दैट कि हमको ये दिखाना है कि हमको ये भी आता है, हमको ये भी आता है, हमको ये भी आता है। तो हम क्या होता है अपनी लाइफ का जो स्किल है, जो एटीट्यूड है, वो छोड़ देते हैं जीना। तो आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए? हु सो एवर यू, a winner or a loser, be confident in yourself, be a good attitude towards yourself and try to improve that। क्योंकि अगर आप नेगेटिव साइड में भी हैं तो आपकी सेल्फ एस्टीम आपको लो होगी।
कहीं ना कहीं आपके एक कोने में आपको लगेगा कि नहीं, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग एंड वी मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। हमारा जो बेसिक नेचर है कि हम अच्छा चाहते हैं, तो कोई भी ठीक है वो बुरा हो गया, लेकिन कोई ये नहीं चाहेगा कि वो बुरा ही रहे, तो वो अपना इम्प्रूवमेंट करेगा। तो आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि यू मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइफ। इसके लिए क्या होना पड़ता है, सबसे पहले हमारा माइंडसेट ओपन होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल पीपल हैव टैग मार्क्स, सम पीपल लाइक दे आर क्वेरलसम और दे आर एंग्री मैन। तो वो क्या करेंगे, अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे, यस हम तो ऐसे ही हैं, वी कांट चेंज। दे हैव एडमेंट टाइप ऑफ नेचर कि अपने दिमाग को क्लोज कर लेंगे, बिकॉज वो किसी से लड़ नहीं सकते, और किसी से लड़ना तो छोड़ो, वो अपने आप से एक्चुअली परेशान होते हैं कि सब लोग उन्हें नेगेटिव टैग मार्क्स दे रहे हैं। तो उधर अगर आप पर्सनालिटी को मन ही मन, ऐसा कोई नहीं होगा जो अंदर से चेंज नहीं होना चाहेगा। आप कितना भी दुनिया को दिखा लो कि आई फील प्राउड टू बी क्वेरलसम, आई फील प्राउड टू बी एंड डिफिकल्ट टाइप ऑफ टॉक्सिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, बट अंदर मन अगर आप झांकोगे तो हर इंसान अपने आप में गुड क्वालिटीज देखना चाहता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको माइंड खोलना पड़ेगा, आप दूसरों की बातों को तवज्जो देना पड़ेगा। ये हमेशा जो हमारा एक अड़ियल बिहेवियर एडमेंट नेचर होता है कि हम किसी की सुनते नहीं है, तो हमें वहाँ क्या होता है, ठीक है अपने फ्रेंड्स की पीयर्स की ना सुने, लेकिन जिससे आप क्लोज हैं जस्ट गो टू देयर और उनसे आप सुने कि हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ माइंड, और थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाएं अपने में। ठीक है, तो अपना माइंडसेट जो है हम ओपन करेंगे, क्योंकि हम माइंडसेट ओपन क्यों नहीं करते, कहीं ना कहीं हमें एक इगोइस्टिक बिहेवियर होता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसा कैसे चेंज हो सकता हूँ। सी द प्रॉब्लम इज दिस बिकॉज वी हैव ए ईगो सेंट्रिक अप्रोच। हमको लगता है कि हम ही सब कुछ हैं। सी हम लोग ह्यूमन बीइंग आर सो सेल्फिश कि यहाँ जब हमें गॉड ने क्रिएशन किया था तो वी आर द पार्ट ऑफ द क्रिएटिविटी, हम ब्रह्मांड का एक पार्ट थे। वहाँ एक छोटी सी छोटी चींटी का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना एक ब्रेन वाले ह्यूमन का इम्पोर्टेंस है। बट द ह्यूमन डोमिनेटेड द होल वर्ल्ड एंड होल दिस यूनिवर्स एंड दे थॉट कि हम ही सब कुछ है। और हमारा ईगो इतना हाई हो गया कि हम आसपास के क्रिएचर का तो छोड़ो, हम ह्यूमंस को भी कुछ नहीं समझते। दैट्स वाई द ईगोसेंट्रिक अप्रोच हमारी इतनी हाई होती है कि हम चेंज होना नहीं चाहते। बट इफ वी थॉट कि वी आर द नियर अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस यूनिवर्स, तो अगर हम कुछ चेंज करेंगे, हम ब्रह्मांड की तरह, हम यूनिवर्स की तरह बनेंगे, तो उसमें हमारा भला है, किसी दूसरे का नहीं। सो यू शुड बी इन अ पीस, इन अ गुड personality development stage. Okay, so you should be open. Create an openness trait in your personality to welcome new ideas, peoples, places and experiences. एक्चुअली जब हम बुक रीडिंग की बात करते हैं, बुक रीडिंग इसमें बहुत अच्छा आपको हेल्प करेगा। क्या होता है कि हमारे जो क्लोजनेस क्यों होता है, बिकॉज वी कांट डील विद अदर पीपल्स। हमारा क्या होता है, हमारा बहुत छोटा सर्कल होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कुएं का मैडक है। अगर मान लो हमारा कॉलेज है या हमारा हॉस्टल है, सारी दुनिया हमारी वही होती है। तो वहाँ अगर कुछ पॉजिटिविटी या कुछ नई चीज नहीं है एक्सपीरियंस, तो हमारा दिमाग खुलता ही नहीं है। तो अगर आप चाहते हो रियल में यू वांट टू बी अ गुड पर्सनालिटी, यू हैव टू ओपन अप, यू हैव टू ओपन योर माइंड फ्रॉम द कुएं के मैडक। उस जगह से निकलना पड़ेगा। अब उस जगह से आप निकल तो सकते नहीं हो, आप डायरेक्ट अपनी पढ़ाई तो छोड़ नहीं सकते, अपना जॉब तो छोड़ नहीं सकते। फॉर दैट व्हाट वी ऑफर बुक्स। बुक्स इज द इजीएस्ट वे, बिकॉज बुक्स जो होते हैं एक्सपीरियंसेस होती हैं। देन यू सी कि पीपल्स ऐसे भी होते हैं, लोग ऐसे भी होते हैं, ऐसी माइंड थिंकिंग होती है। तो आप जो मतलब आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशंस में रह के अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर बुक के थ्रू कर सकते हो। इफ यू डोंट हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग, देन यू गो फॉर ट्रेवलिंग, एडवेंचर। जब हम डिफरेंट लोगों से मिलते हैं ट्रेवलिंग के थ्रू, तो नेचर से मिलते हैं, देन वी लर्न everything from the nature and our mind get up open and we are moved towards the human character and our personality automatically develop. So this is a scientific
means proven research कि we the today's generation is mainly the pleasure seeking brains. मतलब हमें क्या अच्छा लगता है, हमें मीडिया चलाना अच्छा लगता है कि हमने सुबह से उठते से ही हम व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, देन कॉलेज आए वहाँ पढ़ा ये कर वापस गए हॉस्टल में, मतलब वी हैव अ सैड पैटर्न, मतलब प्लेजर सीकेबल ब्रेन होता है। उसके कारण क्या होता है, हमारा ब्रेन जो है ना, बोलते हैं ना ठस बुद्धि हो गई, मतलब रुक जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। जब हम बचपन में क्या होता है, हम यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, डिफरेंट लोगों से बात करते हैं, तो हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। यहाँ क्या होता है, एक स्टेज पे आके हम प्लेजरेबल स्टेट में आ जाते हैं, हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट नहीं होता। तो वी कैन से इट्स अ काइंड ऑफ एडिक्टेड ब्रेन की रूटीन में वही चीजें करना, वही टीवी, वही खाना, मतलब कुछ आप नया नहीं कर रहे हो लाइफ में, कुछ आने ही नहीं दे रहे हो ब्रेन में। तो यू हैव टू मूव टुवर्ड्स योर healthier brain side, मतलब you have to open up your brain and create new connection in your brain. okay, so जब आपके न्यू कनेक्शन बनते हैं, जब आप नई चीजें पढ़ते हो, देखते हो, नए लोगों से मिलते हो, तो आपकी जो एक रूटीन थिंकिंग होती है, नॉर्मल थिंकिंग, बिकॉज 90% ऑफ द पीपल हैव द नॉर्मल थिंकिंग पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल बहुत ईजी चीज बताती हूँ मैं आपको, जैसे कि आपके हॉस्टल्स में होता है, किसी ने कुछ बोला कि वो उस सब्जेक्ट में उसका कंपार्टमेंट आया या फेल हो गया, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, बट किसी ने बोला है, वो बात होते 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 उसने एक सब्जेक्ट की बोली, यहाँ 3 सब्जेक्ट की, जो लेटर ऑन जो रिजल्ट आ रहा है पता चला वो 3 सब्जेक्ट में फेल। कितने लोगों से वो बात गई और कितने लोगों ने उसको क्रिटिकली थिंक किया, जैसे बोला उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के नमक मिर्च लगा के हमने भेज दिया। दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल थिंकिंग। विदाउट यूजिंग आवर ब्रेन वी पास ऑन द इंफॉर्मेशन। ओके, कॉलेजेस, प्रोफेशनल जगह ये सारा होता ही है, और उसका हम इतना स्ट्रेस लेते हैं बिकॉज वी हैव अ हैबिट ऑफ नॉर्मल थिंकिंग। सो बी अ क्रिटिकल थिंकर। क्रिटिकल थिंकर क्या होगा, जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आती है, नॉलेज आती है, यू गॉट इनटू द डीप ऑफ द थिंकिंग, वाकई ऐसा हो सकता है, या उसने उसको ऐसा बोल दिया, वाकई ऐसा हो सकता है क्या, या अगर हो भी रहा है तो मुझे क्या करना उससे। तो जब हम इस टाइप की थिंकिंग रखते हैं, क्रिटिकल होते हैं, तो हम स्ट्रेस लेवल को या माइंड को ब्लॉक होने से बचाते हैं। और माइंड स्टार्ट वर्किंग, उसे हम कुछ एक्सरसाइज देते हैं कि यू थिंक क्रिटिकली। सिमिलरली क्या होता है कि जो लोग एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी में निकलते हैं या सक्सेस में निकलते हैं, वो क्रिटिकल थिंकिंग से आगे चल क्रिएटिव थिंकिंग में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि नॉर्मल चीज़ें तो सब कुछ करते हैं, जैसे आपके बीटेक किया, फिर आप लोग एमटेक कर लोगे, फिर पीएचडी कर लोगे, दिस इज नॉर्मल थिंग। बट अगर कोई एक सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर होकर निकल रहा है और एक अच्छी अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहा है, दैट इज द क्रिएटिव थिंकिंग। मतलब वो जो विजन होता है, विजन हम क्या बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म होता है, मतलब विद प्लानिंग होता है, उसको हम बोलते हैं विजन। तो आप स्टार्टिंग में जो विजनरी इंसान होगा वो स्टार्टिंग से ही होता है और डेवलप भी कर सकता है, लेकिन उसको ये पता है कि मेरे को लाइफ में करना क्या है, उसके गोल्स क्लियर होते हैं और उस अकॉर्डिंग वो अपनी स्ट्रैटेजी करते हैं, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग होता है। और डेफिनेटली दे possess अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी। ओके, सो यू हैव टू थिंक बिग। अभी क्या होता है, आप अपने सपने भी किसी को बताओगे ना तो लोग हंसेंगे। द वेरी फैक्ट एंड इज दिस कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ या मैं इतने टर्नओवर की कंपनी खड़ा करना चाहता हूँ, तो पीपल विल लाफ एट यू। एंड द क्रिटिकल और इनोवेटिव थिंकर जो होगा, उसको अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, he will rely on their dream, on his or her dream. So if you have to be a extraordinary personality, you have to do something big in your life, you have to think out of the box, you have to take the risk to think out of the box. जो लोग कहते हैं कि नहीं कर सकते और वो करके दिखाओगे, तभी आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी बन पाओगे। तो आपको जब लोग मना कर रहे हैं ना कि आप ये नहीं कर सकते, इट मीन्स इफ आपको मतलब वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है, तो यू हैव टू ट्राई, बट यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप कर सकते हो। हमें सोसाइटी का एक्सेप्टेंस नहीं, हमें सेल्फ एक्सेप्टेंस चाहिए कि वेदर यू आर एबल टू डू इट और नॉट। ओके, सो आप जब आप कुछ करना चाहते हो, ये भी बहुत अच्छी बात है कि हम लोग सब कुछ बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं कि
वी वांट टू डू दिस इन माय लाइफ, और ऐसा होना चाहिए और वैसा होना। लेकिन जब हम रियल लाइफ सिचुएशन में आते, इवन सिंपल सा एग्जांपल, इफ वी वांट टू लूज आवर वेट और वी वांट टू बी अ फिट, तो उसके लिए आपको सुबह उठना पड़ेगा, बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी। हाउ मेनी ऑफ यू डू दैट? हाउ मेनी ऑफ यू लेफ्ट योर कंफर्ट जोन? क्योंकि हमारा न्यूटन का लॉ यही है कि जब तक आपको एक धक्का नहीं मारा जाएगा तब तक आप तो अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे नहीं, ठीक है ना। तो आपको क्या होगा, अपने कंफर्ट जोन से अगर कोई भी गोल सेट करना है, ऐसा नहीं है कि आपने प्लानिंग कर ली, मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, बट आपने एक्शन ही नहीं लिया। This is the toughest thing in your life. If you do something in your personality, change करना चाहते हो, हैबिट चेंज करना चाहते हो, तो कंफर्ट जोन से आपको निकलना पड़ेगा। द वेरी बिग थिंग इज दैट कि लोग होते हैं वो एक्शन टेकर्स नहीं होते हैं। जस्ट आप बहुत अच्छी चीजें प्रीच करते हैं, मतलब देख लेते हैं, बट उसको आप प्रैक्टिस में नहीं ला रहे हो, तो दिस इज वेस्टेज। ओके, तो जब आप कंफर्ट जोन से निकलते हो तभी आपकी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती है, देन यू विल डेवलप योर स्मार्ट गोल। द गोल शुड बी, ऐसा नहीं कि वो आप पा ही ना सको, मतलब स्मॉल स्मॉल गोल्स बनाइए, तब आपके बड़े टारगेट्स पूरे हो जाएंगे कि आपके वो स्पेसिफिक हो। यू कैन राइट डाउन योर गोल्स। सी, इफ यू आर नॉट राइटिंग योर गोल, इट आर मियरली विशेस, दे आर जस्ट मियरली विशेस। तो अगर आप लिटरली यू वांट टू achieve your goal, you have to write down your wishes. What I did in my BVSC, my graduation time, I have a vision board in my room. I write everything कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है। I have 24 hours वो मेरा नजर मेरे गोल पे रहती थी। तो these are the very specific thing. What I am today, it's not just by chance. I have developed from basic, from starting from my childhood. सो ये इसीलिए कह रहे हैं, अगर दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द माइलस्टोन फॉर यू टू डेवलप योर पर्सनालिटी, तभी आपको आगे जाके आप जो चाहते हो वो मिलेगा। सिमिलरली अब आपने गोल सेट कर लिए, बट यू डोंट हैव अ टाइम मैनेजमेंट, यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट टू योरसेल्फ, कि कितना सोना है, कि कितनी बातें करनी है, कि कितनी गप्पे लगानी है, कि हम कॉफी पीने गए तो हम कॉफी ही पीते रह गए। तो सी द थिंग इज दैट इफ यू हैव टू बी something great personality in your life, or at least something successful personality in your life, you have to be very means mean to your time management. You should be very strict to your time management. एंड द सिमिलरली जब आप कुछ हट कर करते हो, मतलब सम एक्स्ट्रा और सक्सेसफुल पर्सनैलिटी ऑलवेज डू समथिंग बिगर और समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब जो सोसाइटी नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, जब सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं या जिसका प्लेसमेंट होता है, दे हैव टू डिवोट मोर टाइम इन देयर पर्सनल स्टडीज, मोर टाइम इन देयर पर्सनल ग्रूमिंग और वट एवर। तो क्या होता है कि 90% ऑफ द पीपल आर नॉट डूइंग दैट, तो हमको कॉन्फिडेंस नहीं आता और हम मॉब की तरफ चल देते हैं, मतलब वी आर नॉट इन कंट्रोल आर माइंड। हमको जो प्लेजर सीकिंग होता है कि चलो पार्टी बना लेते हैं, चाय पी लेते हैं, मतलब हम अपना टाइम उस टाइम को वेस्ट करते चले जाते हैं और हमारा गोल भूल जाते हैं। तो द वेरी थिंग इज दैट यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड, योर एटीट्यूड शुड बी फोकस्ड ऑन योर गोल। बिकॉज क्या होता है कि हमें लोग बोलेंगे अरे चलो बाद में पढ़ लेना, अभी क्या पढ़ने की जरूरत, अरे चलो बाद में कर लेना। तो क्या होता है कि 90% ऑफ द पीपल जो होता है नेगेटिव बिहेवियर के होंगे, वो कभी आपको इंकरेज नहीं करेंगे। सो डोंट expect from those people. If you have to believe in yourself only, because you have to do that, is your life. So you have to empower your mindset कि मुझे अगर करना है तो मेरा जो लिविंग स्टाइल होगा वो 90% से अलग होगा। तो वहां आपको लो होने की जरूरत नहीं कि यार वो तो एंजॉय कर रहा है, मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ। बिकॉज यू वॉन्ट टू बी इन बिगर इन योर लाइफ, यू वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल इन योर लाइफ। दूसरों को नहीं होना, तो जिसे होना है उसे भीड़ से अलग चलना पड़ेगा। दे हैव टू चेंज देयर ट्रैक। ओके, सिमिलरली हमें नेगेटिव पीपल्स को, क्योंकि हमारी जो ब्रेन की टेंडेंसी क्या होती है, हम खुद भी नेगेटिव होते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि नेगेटिव पीपल है, क्योंकि हमारी जो थिंकिंग होती है ना, आवर ब्रेन इज ट्रेन टू बी नेगेटिव। जनरली कुछ भी होगा बुरा, जैसे कोई बम फूटा या कुछ हो, तो हम उसको नेगेटिव सेंस में लेंगे, या हमारा
कोई फैमिली मेंबर लेट आ रहा है तो हम उसको नेगेटिव फॉर्म में लेंगे, यार ऐसा तो नहीं हो गया, एक्सीडेंट तो हो नहीं गया, तो हमारा ब्रेन जो बाय डिफॉल्ट नेगेटिविटी के लिए ट्रेंड है। तो आपको जब पॉजिटिव माइंडसेट करना होगा तो यू हैव टू प्रैक्टिस कि मेरे को कैसे पॉजिटिव रहना है हमेशा। तो उसके लिए आपको क्या होगा, रोल मॉडल्स बनाने पड़ेंगे, कुछ बुक्स लेनी पड़ेंगी, कुछ कोट्स पढ़ने पड़ेंगे, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखने। आप वीडियोस देखने जा रहे हो, यू आर गोइंग फॉर द मोटिवेशनल वीडियो, वहां से कोई सॉन्ग आ गया, वो कोई आ गया, फिर आपको अपने मतलब दैट इज कॉल्ड द कंट्रोल ऑफ योर माइंड। तो आपके माइंड को आपको कंट्रोल करना है, ये ना मतलब आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है, उल्टा नहीं होना कि माइंड आपको कंट्रोल करे, देन यू आर गोइंग टू बी अ गुड पर्सनैलिटी। सिमिलरली कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है कि वी जनरली फोकस व्हाट वी आर स्पीकिंग, बट इट इज मोर देन दैट, मीन्स इट एक्चुअली द वर्बल एज वेल एज द नॉर्मल नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होते हैं। ओके, तो आप जब कम्युनिकेट करें सो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली स्पीक। जब आप किसी से बात करें you should be very authentic and integrity and very polite in your talk। इसको हम बोलते हैं हेल टॉक, क्योंकि ये एक पर्सनालिटी, जब हम फर्स्ट इंप्रेशन होता है कम्युनिकेशन का, एक एक्सटर्नल अपीयरेंस का, एंड सेकंड इज दैट द कम्युनिकेशन हाउ यू आर स्पीकिंग, वो हो गया। देन अगर आप लॉन्ग टर्म उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो आप जो बोलते हो लोग उसका कितना तवज्जो लेते हैं, मतलब कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी पार्टी में आ रहे हो और उसको बोलते हैं अरे बस मैं 5 मिनट में आया, 5 मिनट, जबकि आप अभी तैयार ही नहीं हुए हो, ठीक है। फिर फोन आया, अरे बस 5 मिनट में आया, 5 मिनट में आया, 5 मिनट। सी वॉट यू आर सेइंग, उससे बोलो कि अभी मेरे को तैयार होने में टाइम लगेगा, आधा घंटे का टाइम लगेगा। तो आपका टॉक हम कभी ध्यान नहीं देते कि आपकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, आप जो बोल रहे हैं ये तो वही बोल रहा है। यू हैव टू बी मैन ऑफ वर्ड। अगर आप अच्छी प्लीजेंट पर्सनैलिटी चाहते हो, व्हाट यू आर सेइंग यू हैव टू डू दैट विद दैट इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। अब बहुत सारे लोगों को बोलने का तरीका नहीं है कि ऐसे लड़ रहे हैं और ये कर रहे हैं। सी यू आर क्रिएटिंग एनवायरमेंट कि आपको 10 लोग देख रहे हैं कि आप चिल्ला कर बोल रहे हो, एग्रेसिव होके बोल रहे हो या पीसफुली बोल रहे हो। दिस रिप्रेजेंट योर पर्सनैलिटी, ओवरऑल पर्सनैलिटी। ओके, सो यू हैव टू एनालाइज कि आप अपना कैसे बात करते हो। कोई कोई चुपचाप और दिस इज द मेजर कॉज ऑफ टाइम वेस्टेज ऑल्सो, कि जब लोग टाइम अपना जो वेस्ट करते हैं कि इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। जो एक अच्छी पर्सनैलिटी होगी दे विल अवॉइड दीज काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, गॉसिपिंग, दे डोंट डू जजिंग द पीपल, ये ऐसे क्यों है, गाइड मेरा ऐसा क्यों है, मैम मेरी ऐसी क्यों है, पड़ोसन मेरी ऐसी क्यों है। दीज आर द जजिंग। भाई सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी, दे आर लाइक दैट ओनली। यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ। कंप्लेनिंग नेचर, आज बारिश आ गई, आज मेरा नेट नहीं चल रहा, आज पैसे नहीं आए, ये हो गया, तो डोंट बी कंप्लेनिंग। जो है चीजों को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। व्हाट इज योर एक्सक्यूजेस, वही हम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। डॉगैट में इसका प्रॉब्लम है कि ऑलवेज बिकॉज ऑफ द ईगो ऑलवेज सेज कि हमने जो बोला, दिस इज ऑल योर पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम अपने आप को बहुत धुरंधर समझते हैं, बहुत स्मार्ट समझते हैं कि हमने जो बोल दिया वही सारा सही है। इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, so the next thing is the body language. It is also includes the gesture, face and posture. So here how you are talking, how your external experiences, how your facial expression, your eye contact to other, it do matters a lot in your basically in your interview or in your डे टू डे थिंग्स। मीन्स फॉर एग्जाम्पल जब कोई आप रूम में बैठे हैं और कोई इंडिविजुअल आपके रूम में आए, यू जस्ट स्टैंड अप बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ द पर्सनैलिटी। उसको हम बोलते हैं एक हमारे आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा होता है, हमारी पर्सनैलिटी का ऑरा होता है। किसी के साथ हम बहुत अटैच हो जाते हैं, कोई पर्सनैलिटी हमें इतनी प्लीजिंग लगती है कि वी आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैम बिकॉज देयर वे ऑफ टॉकिंग, देयर पॉस्चर, देयर आई कॉन्टैक्ट, मतलब एक तेज जो होता है ना वो होता है। तो जब हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट में पीपल डोंट थिंक व्हाट आर द बेसिक एटिकेट्स। फॉर एग्जांपल हम किसी सीनियर से बात कर रहे हैं और हम ऐसे करके बैठे हुए हैं, सो दिस इज नॉट द मैनर्स, व्हाट वी कैन से द बेसिक एटिकेट्स। हम बात कर रहे हैं, हम अपने पैरों को हिला रहे हैं,
बात करें देख कहीं और रहे हैं, वी डोंट हैव अ आई कांटेक्ट. तो these are the basic manner of your personality, because you have to go for a different kind of interview as well, and to your student also you have to present yourself, so you should be in a good personality condition कि जब हम खुद ही उतना नहीं है तो what we can give to our students, so you have to first develop in yourself. Okay. Similarly, the social skills are also very important in your personality. You are very good at your academics, you got a good position, but you are not socially fit. Everybody is annoyed of you and everybody is afraid of you कि भाई ये आ गए तो सर दर्द होगा, ये हो गया तो ऐसा हो गया वो. तो see what is your social reputation. You don't have a sharing attitude, you don't have a cooperative attitude. So these are the skills that you have to inculcate in your personality. You should be your interpersonal relation with your friends families, you should be empathetic. मतलब आजकल हम लोग बोलने के लिए तैयार रहते हैं, कोई हमारी कुछ अपनी बात सुनाता है, हम जब बोलते हैं ना कि भाई आजकल तो दुख सुनाना भी इतना मुश्किल है कि हमने सुना है वो 10 और सुना देगा. सो वी शुड बी एम्पैथेटिक. कोई हमसे शेयर कर रहा है तो डोंट बी वेरी जजमेंटल टुवर्ड्स देम. उसके दर्द को हम महसूस करना आजकल भूल गए, किसी के पास टाइम ही नहीं है किसी का सुनने का. सो एवरीबडी इज लोनली. उनके पास उनका फोन है, इट इज गिविंग देम अ गुड कंपनी, बट द दिस इज नॉट द ट्रूथ. आगे चल के ये सब बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे. माइंडफुलनेस, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर रही हूँ, आई एम गिविंग यू द लेक्चर एंड यू आर डूइंग समथिंग एल्स. सो वेयर योर माइंडफुलनेस, आपका माइंड कहीं और काम कर रहा है, यू आर थिंकिंग समथिंग एल्स. तो ये सब पर्सनैलिटी का छोटी छोटी चीजें हमारी हैबिट्स में आ जाती हैं. इफ अगर हमने एक लेक्चर में कर लिया, 2 लेक्चर में कर लिया, हम अगर इसको रूटीन बना लेते हैं ना, तो ये हमारी हैबिट्स बन जाती हैं. तो लिटरली हम अगर कोई अच्छा आपको लेक्चर भी दिया जा रहा है, यू मिस दैट वन. तो कोई बात नहीं, वी शुड नॉट बी टू सेल्फिश कि हम हर चीज को फायदे से नापे कि मेरे फायदे का होगा तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा टाइम, अदरवाइज नहीं करूंगा. समथिंग समटाइम वी हैव टू डू अदर देन दैट. फॉर एग्जाम्पल, I'm also doing this apart from my subject and spending lot of time in my self improvement, and that I am spreading to other people also. अगर मैं इतनी selfish हो जाऊंगी कि if I have to restrict to my subjects only, so every time it is not worth कि you have to be very selfish to everything in your life. You have to give some liberty to your life कि कुछ तो अच्छा करो, कुछ तो सच में enjoy वाला करो कि सब चीजें आप ताल मोल के करोगे. ओके. तो यू शुड बी पॉजिटिव कि आप किसी को, आजकल क्या होता है कोई किसी से सजेशन लेने जाएगा तो उसको इनकरेज करने की बजाय डिस्करेज करने वाले 10 आ जाते हैं. तो वो जो नेचर है पॉजिटिविटी का वो बहुत कम हो गया है. तो यू शुड बी अ पॉजिटिव इंडिविजुअल, पॉजिटिव पर्सनालिटी. ओके. तो जब आप में ये सारे ट्रेड्स आते हैं तो खुद ब खुद आपके रिलेशन इतने अच्छे हो जाएंगे, यू फील सो मच ऑफ पीस एंड pleasure and happiness in your life, so your life become a successful. So it's a teamwork, coming to together is the beginning. Okay. जब हम स्टार्टिंग में एक साथ आते हैं लेकिन जब हम वर्क करते हैं एक साथ तो वो एक सक्सेस बन जाती है. सिमिलरली अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हो या आप एक मैनेजरियल पोजीशन पे आओगे, तभी ये वाली स्किल बहुत मैटर करती है, जो कि अभी मैटर नहीं. इवन इफ यू आर अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर क्लास, अगर आप सीआर हैं, आप टीम लीड हैं, तो यू शुड बी वेरी क्लियर. आप ज़रूरत नहीं है कि हमें मैनेजमेंट का कोर्स ही करना पड़े कि हमें एमबीए करेंगे तभी हम लीडरशिप समझेंगे या मैनेजमेंट समझेंगे या एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है वो जानेंगे. तो इसके लिए हमें करना क्या है कि खुद का सेल्फ अवेयरनेस पहले होना चाहिए. जो मैंने लास्ट में स्किल्स आप इनकॉर्पोरेट करोगे, साथ में जो लीडरशिप क्वालिटी, जो मैनेजरियल क्वालिटी है कि यू हैव टू नॉट टू बी अ जजमेंटल. जैसे हम बोलते हैं कि एक जो सीट पे जो मैनेजर है वो जनरली क्या होता है 10 लोगों को सुनता है, और जो उसके हम जो आजकल हम देखते हैं कि जो उसके खास होंगे, जो उसको बताएंगे वो उस पर करेगा. लेकिन अगर एक ट्रू लीडर है, यू शुड रिलाई ऑन द फैक्ट rather देन द पर्सनल रिलेशन और जो अदर फैक्ट्स हैं. उसके बाद इंकरेज करेगा उसके टीम मेंबर्स को, दे हैव पैशन, क्रिएटिविटी और परसिस्टेंसी होगी. सिमिलरली वो इनर्जेटिक होगा, सबको मोटिवेट करेगा. सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बॉस एंड लीडर इन टुडेज सिनेरियो.
हम सब बॉस बनना चाहते हैं, बट लिटरली मैं बताऊं, यू शुड नॉट बी अ गुड पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी, अगर आप एक पर्सनैलिटी, इम्पैक्टफुल पर्सनैलिटी चाह रहे हो कि आप वो सीट से आपको जाने के बाद भी लोग याद करें, तो यू शुड बी अ गुड लीडर। यू शुड टेक योर ऑफिस, योर टीम एज अ team, in a team spirit. You have to coach them. You have to say our accomplishment is because of all of us rather than बिकॉज ऑफ मी। तो जो लीडर और बॉस में होता है कि बॉस हर चीज़ अच्छा अच्छा अपने को बोलेगा और जो क्रेडिट्स है वो खुद लेगा और दूसरों को ब्लेम करता है। बट लीडर्स क्या होता है कि लीडर्स वो होते हैं जो ब्लेम हमारे ऊपर, मतलब जो अगर गलत हो रहा है वो हमारे ऊपर लेगा और टीम को आगे बढ़ाएगा। बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है, अगर आपने अब्दुल कलाम जी का एक इसरो का एग्जाम्पल देखा होगा। दे हैव टोल्ड कि उनके बॉस ने, जब उनका एक रॉकेट लॉन्च होना था वो फेलियर हो गया था, तो उनके लीडर ने वो सारा जो हैपनिंग हुई थी, जो प्रोजेक्ट फेलियर हुआ था, उसका ब्लेम अपने ऊपर लिया था। लेकिन जब वो बाद में उसका सक्सेसफुल लॉन्च हुआ तो उसका जो क्रेडिट है वो उनकी टीम को दिया। तो दिस इज कॉल्ड द लीडर, जो कि अभी इट्स मिसिंग। वी हैव टू लर्न दीज ट्रेट्स। ओके, एंड लास्टली, जब हमें ये सब करना है लाइफ में, आगे अपने में डेवलपमेंट करना है, स्ट्रेस इज नेचुरल। ओके, कोई इतनी दिक्कत नहीं है, बट अभी के टाइम में स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हमारे फाइनेंशियल स्ट्रेसेस होते हैं, रिलेशनशिप स्ट्रेस होते हैं। इस टाइम में तो खासकर कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। तो ये सारा आपको मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो यू नो हाउ टू मैनेज। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप स्ट्रेस में हो। कई लोग गुस्सा कर रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि बिकॉज ऑफ माई स्ट्रेस। इवन द हेडेक, मोस्ट ऑफ द हेडेक्स इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। जनरली डॉक्टर के पास जाओगे, दे विल डिक्लेयर दैट यू हैव अ माइग्रेन, बट द बेसिक फीचर बिहाइंड दैट इज द स्ट्रेस। So you should know that you have some stress in your mind. Something is means आपके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, अनकॉन्शियस माइंड में स्ट्रेस हो रहा है। तो उसके लिए what you have to do, you have to do your passion, you have to follow your passion, you have to do sports activity. माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस मतलब योगा करना है, आपको मेडिटेशन करना है, कि मैं जो बोल रहे हैं या जो प्रेजेंट में हम जो कर रहे हैं उस पर आपका फोकस करना है, रेदर देन कि आगे क्या होगा। क्योंकि हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है, आइदर तो हम फ्यूचर का सोचते हैं या पास्ट में जो हो चुका है उसका सोचते हैं, हम प्रेजेंट में कभी नहीं रहते। और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस जो है हमारा लैक ऑफ द प्रेजेंट ह्यूमन अवेयरनेस के कारण होता है। सिमिलरली आपको बैलेंस डाइट, बैलेंस मतलब ऐसा नहीं कि सोता है, सोने है तो सोने, एक्सरसाइज ज़रूरी है, हेल्दी डाइट ज़रूरी है, गपशप ज़रूरी है, सभी कुछ। मतलब आपको एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, मतलब बैलेंस लाइफस्टाइल होनी चाहिए। ओके, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कई बार लोग क्या होते हैं, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को ग्रज की तरह रखे बैठे रहते हैं। बेटर टू रिजॉल्व दैम। जो जिससे बुरा लग रहा है, बेटर टू मीन्स उनसे कह देना चाहिए कि वो चीज़ हमारी रिजॉल्व हो जाए, रैदर देन कीपिंग इन माइंड। और उसका इतना प्रेशर हम ग्रज लेके 5-5 6-6 साल तक कि उसने ऐसा किया था मेरे साथ, वो लेकर हम बैठ जाते हैं। ओके, सिमिलरली जर्नलिंग इज अ वेरी गुड टेक्निक नाउ अडेज। जर्नलिंग क्या होता है, एक डेली डायरी होती है और एक जर्नलिंग होती है। डेली डायरी क्या होता है, जो डेली के इंसिडेंट्स होते हैं, वी राइट दैट इन अ पर्टिकुलर डायरी। जर्नलिंग क्या होती है कि जो, अगर आप एक अच्छी पर्सनैलिटी बनना चाहते हो, यू हैव टू डू द डेली जर्नलिंग। मीन्स आप आज क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज आपने एक अच्छा लेक्चर सुना, बस स्मॉल मोमेंट के लिए आपने एक लेक्चर सुना, बट योर माइंड गिव्स यू सम क्लू कि अब आपको आपकी लाइफ में ऐसा ऐसा चेंज करना है और मैंने आज ये सीखा। तो जैसे हम रिसर्च पेपर लिखते हैं ना, उससे हमने क्या सीखा, उसके आउटकम्स क्या हुआ। एक जर्नलिस्ट सा हम उससे क्या पर्टिकुलर डे से हम क्या सीख रहे हैं, या पर्टिकुलर इंसिडेंट से या सिचुएशन से हम व्हाट वी आर लर्निंग, वी हैव टू राइट डाउन इन दैट जर्नल। तो उससे क्या होता है, आपके एक तो थॉट क्लियर हो जाते हैं कि व्हाट यू आर वांटिंग इन योर लाइफ और आपको उसको कैसे रिजॉल्व करना है। एंड देन एक मेडिटेशन, यू नो वेरी वेल, बट इट्स क्वाइट डिफिकल्ट नाउ अडेज बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड मेडिटेशन हो गया, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, इतने मेडिटेशंस हैं। मेडिटेशन इज नथिंग। मेडिटेशन ये है कि आप जो भी करें उसको प्रेजेंट मोमेंट में रहकर करें। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में है तो यू डोंट नीड मेडिटेशन, बट हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते नहीं हैं। अगर हम फोन भी देख रहे हैं ना, वी हैव लॉट्स ऑफ थॉट इन आवर माइंड। ओके,
So like this, we have to be either in present moment, or either we have to practice meditation to manage our stress. Okay, thank you then. So in this way, we have to continuously track our progress, and we have to give help of some of our well wishers to take feedback from that we have planned for this, and I want to do some means change in my personality, I want to do something in my life. We have to share with our well wisher, not with everybody, only with our well wisher, and just try to improve in ourselves. So slowly or slowly, the atomic efforts, atomic habits will make a greater personality of yours. So at the end, I will say, follow these tips, I can say, and success will follow you. So thank you very much to all of you for your patience hearing. Any question, you can directly ask me, or you can write in the chat box as well. Thank you, ma'am. Thank you, Dr. Pragya, for giving excellent presentation and especially on how to improve the personality development with so much of examples. And I also request our head to comment on the what is the lecture if she is available. Dr. Sandeep Sodhi. Otherwise, we'll take it to. I re- Sodhi ma'am. Hanji, hello. You can hear me? Yes, हाँ ma'am. ma'am. Yes ma'am. Yes Okay. ma'am. Please. So I would like to thank the speaker. It is a very important aspect of life to be have a good personality and to enter into any kind of profession, entrepreneurship. It is very important part to develop completely along with the cat pics. So I must thank the speaker for such a versatile talk and interesting talk. Thank you Thank you, very ma'am. much. Thank you, ma'am, for giving a nice word. I request Anuradha to take the question and answer session. Uh, uh, there are Uh, few questions. You can just Thank you, write. ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. One question from Kiran. She is asking that, ma'am, due to COVID-19, all the universities are off. In this situation, students face problem in our study, and how to continue study at home. Okay. So Kiran, actually, COVID given a negative environment with regards to study, but on the other hand, I can say it's the best opportunity to avail the full potential of the study, what you want to study. Actually, अभी तो हमारे पास सारा कुछ online available है. There is no restriction for this. तो देर इज नथिंग टू से कि हमारे को पढ़ाई का टाइम नहीं मिल पा रहा है या मटेरियल नहीं मिल पाता है, बिकॉज एनीथिंग यू वांट टू ट्राई, बट द बेसिक थिंग यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, आप पढ़ना चाहते हो? अगर आप पढ़ना चाहते हो तो कंडीशन कैसी भी होगी आप कर लोगे, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं आप कैसे कर लोगे. दिस यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि व्हाट यू वांट टू स्टडी, क्योंकि स्टडी मटेरियल की कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लासेस में ऐसा कुछ भी ज्यादा नहीं बताया जाएगा, उससे आप ज्यादा खुद से सेल्फ स्टडीज से पढ़ सकते हो. सो और टीचर्स, आई थिंक योर टीचर्स आर वेल वर्स्ड इफ यू से कि हमें अगर आगे का चाहिए तो दे कैन शेयर टू यू ऑल्सो. और आई थिंक बीटेक के लेक्चर्स आईसीआर की वेबसाइट में ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल इज देयर. सो इफ यू अवेल दैट, बट यू हैव टू बी वेरी अवेयर एंड वेरी ट्रूथफुल टू आवर सेल्फ कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है. डोंट go outside. This you have to find by yourself. Thanks. Yes, ma'am. One question from Prerna. She is asking that, how to overcome negative thoughts. Yeah, that's a good question.
Actually, I would say I already told previously in the lecture that our mind is mainly by default trained for negative thoughts. हम कुछ भी होता है तो हम पहले negativity ज़्यादा आती है. तो फॉर दैट आपको भी अपनी ब्रेन को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी. यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन फ्रॉम पॉजिटिविटी. पॉजिटिविटी के लिए यू हैव टू कीप योर सेल्फ सराउंडेड विथ पॉजिटिव पीपल्स, पॉजिटिव थॉट्स. फॉर एग्जाम्पल, आपका बहुत छोटे छोटे से एग्जाम्पल है. आई कीप अ डेली स्टेटस ऑफ व्हाट्सएप विद अ पॉजिटिव थॉट. ओके, ये क्या होता है जब आप फॉर एग्जाम्पल, और सिमिलरली आप फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे एक पॉजिटिव थॉट का जब आप एक मैसेज करते हो तो आप अगर उसका लाइक्स पढ़ोगे या जब लाइक्स देखोगे कि 2-3 बार उसको कॉन्टिन्यूस उस थॉट्स को पढ़ोगे ना, तो आपका माइंड में सबकॉन्शियसली वो क्या होगा, फीड अप हो जाएगा. सिमिलरली जब आप रात को सोते हो, सोने से पहले और जागने के बाद क्या होता है, अर्ली मतलब लेट नाइट में जैसे ही सो रहे हो और वैसे ही उठ रहे हो तो आपका माइंड जो होता है, सबकॉन्शियस माइंड, वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है. दैट टाइम यू मेक सम रूल कि आपको व्हाट्सएप नहीं देखना, ये सब नहीं देखना, कुछ पॉजिटिव थॉट्स देखने हैं, पॉजिटिव थॉट पढ़ने हैं. क्या होता है, हम जैसे ही सुबह उठते हैं और हमने कुछ फेसबुक में ये अपने व्हाट्सएप में कुछ नेगेटिव न्यूज़ देख ली या सोते से हमने कुछ नेगेटिव मैसेज पढ़ लिया, तो हमारे सबकॉन्शियसली वो पहुंच जाता है और हमें नेगेटिव की आदत पड़ जाती है. तो आप ब्रेन को फीडिंग क्या दे रहे हो? जैसे हम डाइट को, अगर आपको यू हैव टू कीप योर बॉडी हेल्दी, यू हैव टू ईट, मतलब आप बाहर का बर्गर पिज्जा नहीं खाओगे ना, जंक फूड तो नहीं खाओगे. सिमिलरली अगर आपको अपने ब्रेन को, थॉट्स को नेगेटिव होने से बचाना है, तो आपको थॉट उसके अंदर जा कौन से रहे वो देखना है. आपको वीडियोस कैसे देखने हैं, आपको न्यूज़ कैसी देखनी है, दैट यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव इन योर फीडिंग ऑफ योर ब्रेन. ओके. Thank you, ma'am. One question from Nikita. Okay. She is asking how to fight procrastination and become more productive. हाँ, दैट इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन. एक्चुअली प्रोक्रेस्टिनेशन का प्रॉब्लम ये होता है कि आप चाहते तो हो, मतलब दैट इज द थिंग दैट यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग बट योर ब्रेन इज नॉट हेल्पिंग यू. मतलब हम प्लान में रहते हैं, तो इस कारण क्या होता है, हम चीज को पोस्टपोन करते जाते हैं कि अभी नहीं कल कर लेंगे, अभी नहीं कल कर लेंगे. तो इसके लिए ना यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर होना चाहिए कि आपकी ये प्रायोरिटी कितनी है. एक्चुअली आपकी प्रायोरिटी होगी ना, फॉर एग्जाम्पल आपको ब्रश करना है, ये आपका एग्जाम है, तो आप वहाँ प्रोक्रेस्टिनेशन सोचोगे? नहीं सोचोगे ना. तो जिस चीज के लिए भी आप प्लान कर रहे हो ना कि ये प्रोक्रेस्टिनेट हो रहा है, इट मीन्स द थिंग इज नॉट इन योर प्रायोरिटी लिस्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ब्रिंग दैट थिंग इन योर प्रायोरिटी लिस्ट. जब आपकी वो प्रायोरिटी लिस्ट में आ जाएगी ना, ऑटोमेटिकली प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाएगा. अगर आपकी प्रायोरिटी है कि मेरे को गोल्ड मेडलिस्ट होना है या मेरे को एग्जाम में टॉप करना है, तो नो बडी कैन से कि आपको ये काम पोस्टपोन कर दो या आप ये पेपर नहीं लिखना है या कुछ भी करना है. तो फर्स्ट ब्रिंग दैट थिंग इनटू योर प्रायोरिटी लिस्ट. ओके. Thank you, ma'am. One question from Ashish Kumar. How to get motivated all the time? दिस इज सिमिलर एज थॉट. आई ऑलरेडी टोल्ड यू ना कि ये आपको ब्रेन को फीडिंग करना पड़ेगा. मतलब इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. इट्स नॉट लाइक दैट कि आप सोचो कि 1 मिनट में हो जाएगा या हम 1 महीना प्रैक्टिस करेंगे. अदरवाइज इफ यू सी द बुक्स, द बिल्डिंग हैबिट्स, तो यू सी दैट इट इज सेड दैट if a habit is created for continuously for 21 days, it become your habit. तो आप ब्रेन को अगर 21 days पॉजिटिव थॉट्स दोगे, पॉजिटिव सोचोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको सेल्फ मोटिवेशन होता है. बट उससे ज़्यादा मैं वही कह रही हूँ कि दिस इज़ योर प्रायोरिटी. यू हैव टू थिंक कि आपको आपके पीपल्स, आपकी सराउंडिंग, आपके ब्रेन को क्या चीज़ें देनी है. जब आप सेल्फ मोटिवेटेड वाले थॉट्स दोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको सेल्फ मोटिवेशन आ जाएगा. लेकिन जब आप नेगेटिव लोगों से मिलोगे, नेगेटिव न्यूज़ देखोगे, तो आप सोचते हो कि आप पॉजिटिव रहोगे, सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे. इट्स नॉट पॉसिबल. सो this is the thing what you have to give your brain. If you give self motivation thought to your means brain, you will automatically get self motivated. Okay. Thank you, ma'am. One question from Mohit Jha.
Okay. He is asking that how to overcome family pressure during COVID-19 pandemic. What type of family pressure, मोहित, पहले ये तो बताओ. Mohit, you can ask directly. किसका फैमिली प्रेशर है? पढ़ाई करने का, किसी और चीज का? I think पढ़ाई की होगी मैडम. Mohit, you can ask directly. Ma'am, you can answer. हाँ, मतलब फैमिली प्रेशर एक्चुअली क्या होता है कि बस यही है कि देखो, ये एक स्टेज होती है, हम कह सकते हैं ये टीनेजर्स है या हमारे करियर बिल्डिंग का है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स तो पेरेंट्स के साथ हमेशा रहते हैं. ठीक है, वो आपको नहीं समझेंगे, आप उन्हें नहीं समझेंगे, तो उसमें इतना बहुत इश्यूज लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपके साथ नहीं सबके साथ होता है. ठीक है, पहली बात तो ये. देन द थिंग इज दैट कि आप थोड़े बहुत तो किसी से, तो मम्मी पापा से या भाई बहन से, किसी से भी फेमिलियर ज्यादा हो गए, क्लोज ज्यादा हो गए, तो यू जस्ट डिस्कस एंड गिव योर आइडियाज कि व्हाट, क्यों मोहित, क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको बोला जाता है? Unmute, please. Mohit, unmute yourself. अनम्यूट करो. Mohit, please unmute yourself. Yeah. Mohit, your mic is off. मोहित, आपने जब Please तक मोहित unmute. सिग्नल, मेरे को कोई प्रॉब्लम Mohit, नहीं है. your mic is off. Mohit, माइक your ऑन voice. कर देना. Mohit, Your voice is not audible, Mohit. Otherwise, you just you can Yeah. message. हेलो हाँ हाँ बताओ अभी. मैम, आवाज जा रही है क्या? या आ रही है. प्रज्ञा मैम, मैम. मेरा हाँ, क्वेश्चन यही था. हम्म. मैम, मेरा क्वेश्चन यही था, द एक्सपेक्टेशन ऑफ फैमिली इज टू हाई, व्हाट इज द स्कोप? मैम, अभी तो मेरे लिए न्यू ब्रांच है, मैं जानता भी नहीं हूँ मेरी टेक्नोलॉजी में क्या स्कोप है. वो अभी से बोलते हैं जो ज्यादा से ज्यादा मतलब कम होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये सब रिलेटेड. मैम, ओके ओके, वही मैं बताइए. आप बिहार से हो? आप बिहार से हो? यस मैम, बिहार. ओके ओके, चलो गुड. देखो बेटा, ऐसा होता है कि क्या होता है, ये उनका नॉर्मल रूटीन है. ठीक है ना? Yes, ma'am. मतलब कोई भी, अगर हमारे भी बच्चे होंगे या जिसके भी होंगे या आपके टीचर ही होंगे, व्हाट दे विल एक्सेप्ट, मतलब एक्सपेक्ट यू कि आप अच्छा परफॉर्म करो, तो दे आर डूइंग, Yes, दे आर ma'am. गुड. ओके, बट उसको Yes, ma'am. इतना ज्यादा हमारे सर पे नहीं चढ़ाना है कि वी कांट डू आवर रूटीन वर्क, रूटीन Okay. स्टडीज नहीं कर पाए. तो ठीक है, उनको दो, बट यू हैव टू कंट्रोल योर थॉट्स एज वेल, कि मेरे को ज्यादा नहीं सोचना, वो अपना काम कर रहे हैं और मुझे अपना काम करना है. तो योर फोकस शुड बी ओके. जितनी देर आपको बात करना है, उनको मोटिवेटिंग वर्ड्स बोल दो, और उसके बाद क्या करना है, आपको अपने काम में दिलचस्पी रखना है कि मेरे को लिटरली आई हैव टू स्टडी वेल. अगर आप ट्रू हो ना, आपको ट्रू होना है. Yes, ma'am. पेरेंट्स को तो बाद में ट्रू हो जाना, आप अपने आप के लिए ट्रू हो कि आप पढ़ने आए हो, तो आपको पढ़ने ही करना है. लुधियाना में पार्टियां नहीं मनाना है. ओके, ठीक है. ओके. Okay. Okay. ठीक है, थैंक यू मैम. आई थिंक ऑल क्वेश्चंस and आर डन. now being answered, na? Okay. Thank you, Dr. Pragya, for answering all the questions so patiently. And I'm again requesting a student, if you have any question, you can directly ask the ma'am. She is here to answer. Ma'am, request. Please mute your mic. Yes. Yes, Gurbir. Yes, Gurbir. Ma'am, request to all dear participants, please switch on their webcams for the photography. Okay, Vijay ma'am is also there. Students, if you have any questions, okay, Vijay ma'am is also there. Okay. If you have any questions, students, you can ask ma'am, please. Don't hesitate if you... Yes. Ma'am,
जैसे घर पे पढ़ तो लेते हैं लेकिन उतना नहीं पढ़ा जाता जितना यूनिवर्सिटी में रेगुलर होते। वो दिस तो इज हमारे प्रॉब्लम। बच्चे ऐसा है ना, एक्चुअली ओके ओके यू कैन टेल मी। या मैम प्लीज। हाँ हाँ, एक्चुअली बेटा ऐसा है कि वो बात सही है, यही आपको सीखना है कि इफ सिचुएशन इज नॉट एज पर योर विल, उस सिचुएशन में हमारी पर्सनैलिटी कैसे बिहेव करेगी और हमारे टारगेट पे हम कैसे अड़े रहेंगे। दिस इज द थिंग ना, यही तो पर्सनालिटी ट्रेड आपको डेवलप करना है। बिकॉज आगे भी चल के जब आप जॉब में जाओगे तो आप जैसे प्लानिंग करते हो, जो हम फैंटेसी, आई कैन से कि हम फैंटेसी होता है कि हम ऐसा होगा हमारा जॉब, हमारा चैम्बर ऐसा होगा, तो वैसा होता नहीं है एक्चुअल लाइफ में। तो जो चीजें आपको प्रेजेंटली दी जा रही हैं उसके साथ आपको कैसे करना है, सब चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। दैट यू हैव टू बी वेरी क्लियर। अब आपको पढ़ना है, ये आपको सॉल्यूशन निकालना है कि मेरे को छत पे जाके पढ़ना है, मेरे को अलग कमरे में पढ़ना है, जब सब लोग सो रहे हैं तब पढ़ना है, वो आपको करना पड़ेगा। तो द थिंग इज दैट यही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। अगर हमको सब कुछ कंफर्टेबल कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग मिल गया, फिर आप क्या अपने में क्या डेवलपमेंट किया आपने? दैट इज, वो तो कोई भी कर लेगा, लाइब्रेरी में जाके पढ़ना है, क्लास लग रही है, वो तो सभी कुछ कर लेगा। और सिचुएशन में, नेगेटिव सिचुएशन में, how your personality is positive and moving in the same direction, अच्छे से चल रही है, अपने गोल्स की तरफ चल रही है, वो आपकी पर्सनालिटी हुई। ओके, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? Yes. Hello, ma'am. Yeah. यस मनो, हाँ टेल मी। Ma'am, one. हेलो, Yes, यस tell यू me, कैन tell आस्क me. मैम। Sorry, ma'am. You can ask the question. Okay, ma'am. Ma'am, हाँ, जैसे मैम ने कहा कि we should change our mind in each and every situations for positive thinking. But sometimes क्या होता है, हमारा environment इस तरीके से नहीं होता कि हम हर चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कर सकें। हम देख रहे हैं कि चीज़ें गलत हैं और हम उसको सही भी करना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम वो कर नहीं पाते हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? देखो क्या होता है ना, हर सिचुएशन में ना आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। First is that the situation, if you have courage or if you have option to change that situation, you change it. Yes. Okay. Otherwise, the situation is not in your control. जैसे पेरेंटल डिस्प्यूट्स हुए, फैमिली प्रॉब्लम्स हुई, अब उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते बच्चे। तो Yes. in that situation what we have to do, we have to accept the thing कि भाई ये तो ऐसे ही रहना है। अब ऐसे माहौल में मुझे अपने गोल्स कैसे पूरे करने, दैट यू हैव टू डिसाइड। ओके, तो दो ही सिचुएशन है, करो या मरो। करो मतलब सिचुएशन को चेंज कर दो, नहीं है तो जैसी है उसको एक्सेप्ट करो एंड उन्हीं में आगे बढ़ो। मतलब पहाड़ है, जैसे आप एवरेस्ट पे चढ़ रहे हो और आपको क्या बोलते हैं बहुत सारा स्नोफॉल हो रहा है, तो अब अभी क्या करोगे? आप बोलोगे स्नोफॉल रुक जाओ भाई, मेरे को आगे जाना है, ऐसे तो नहीं बोलोगे ना, आपको बढ़ना तो पड़ेगा, तो बढ़ो फिर आगे। ओके, Thank you, ma'am. any question वो students? लड़की आई है मंजीत, वहीं से मिला है। So then I'll will end this question and session, and I request Dr. Manvesh Kumar for the vote of thanks. Manvesh sir? Yes sir. Good evening, everyone. I would like to take this opportunity on behalf of Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences University to express my sincere thanks to our honorable speaker and both the participants and the team members who made this event successful right from the proposal stage. First of all, I would like to pay my regards and gratitude to our distinguished speaker, Dr. Pragya Bhaduria, for sparing her precious time and making us acquainted with the latest insights
towards today's topics. In fact, everyone has their own qualities and traits which are makes him or her unique, just looking good and attractive. In fact, it's a quite broad term and takes into account the physical as well as mental state of the individual, as your overall personality plays a very crucial role in determining your success wherever you go, be it an interview or your daily working place. Ma'am, surely it was a wonderful learning experience for all the participants and the faculty members. And thank you again for sharing your valuable knowledge with us. My sincere thanks also goes to our Honorable Vice Chancellor, Dr. Inderjit Singh, for his excellent direction and motivation. And we are grateful to Dr. S.P.S. Ghuman, PI of the IDP project, Dr. Ramanik, Dean Dairy College of Dairy Science and Technology, Dr. Sandeep Sodi Kakkad, Head Dairy Chemistry Department, and all the IDP cell team for their valuable support and inspiration. Also permit me to acknowledge and express my high appreciation to the team of Dairy Chemistry Department for their untiring efforts to put this webinar together, including faculty members and the students. Your wonderful participation gave us the confidence to play this knowledge sharing platform. So thank you very much, everyone. Thanks a lot. Thank you so much for the vote of thanks. And Gurbir, you have taken the snaps, right? And I Yes, ma'am. request again for, and I request all the participants to fill the form which is there in the chat box. And for the one who have filled the form, them only will get the what to say e-certificate. Okay. So I request again to fill that Google form in order to get the e-certificate. So again, I thanks on behalf of the Dairy Chemistry Department to Dr. Pragya for giving an excellent and wonderful presentation. And so we can conclude or end this webinar today. And thanks again for one and all the participants. And I hope this webinar get benefited to them and will have this kind of association to you, ma'am. And thank you all. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, one and all. I request Gurbi to end the meeting. Okay, thank you, ma'am. I'm disconnecting now. Okay, thank you. Gurbi. Thank you so much.